Hi all, welcome to Prashasnik Gurukul Safalta series. This is Utsav Singh and we will continue with our discussion on possible question which may come in EPFO examination and also in civil services prelims examination. Let's move to question number 1. Which of the following is not a cause of uranium contamination of groundwater? Your options are A. Over exploitation of groundwater, B. Bicarbonate used for bringing uranium out of source rock, excessive use of urea, D. None of the above. The question is not a cause. All three are cause of uranium contamination of groundwater. What is surprising to many, it is excessive use of urea and over exploitation of groundwater. Yes, they both are also the reason for uranium contamination. This was discussed in Parliament in October 2022 by the State Minister of Agriculture. That's the reason एक possible question आपको देखने मिल सकता है. Which state is suffering most because of uranium contamination of groundwater? Definitely the state which is using excessive urea, Punjab. ठीक है? Excessive use of urea is also cause of blue baby syndrome. Okay. So the answer is none of the above because all of them are cause of uranium contamination of groundwater. Moving to question number 2, which of the following is not matched correctly? Again the question is about not matched. ठीक है? बनसागर डैम, सोन रिवर, इथाई हाइड्रो पावर डैम, लोकतक लेक. See, Loktak lake is also known as floating lake because there is huge biomass floating on that very lake. People are even having school on that biomass which is floating. National park is also floating. That national park is Taibul Lamjo. ठीक है? 40 किलोमीटर स्क्वायर का नेशनल पार्क है और फ्लोट कर रहा है इस लेक के ऊपर. ठीक है? कैसे फ्लोट कर रहा है? फुमडी जो होते हैं ना, फ्लोटिंग बायोमास, उसे फुमडी कहते हैं. जब ये डैम नहीं बना था तो इसका पानी का लेवल पीरियोडिकली इट यूज्ड टू गो डाउन बिकॉज ऑफ सीजनल चेंज एंड कम अप. व्हेन इट यूज्ड टू गो डाउन दोस फ्लोटिंग फुमडीज यूज्ड टू गेन बायोमास. ठीक है? जब गेन करते थे बायोमास तो फुमडीज अपने आप को रिचार्ज कर लेते थे. ठीक है? अब बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस डैम फुमडीज आर नॉट एबल टू रिचार्ज देमसेल्फ. अगेन त्रिवेणी canal, it is not on river Ganges, it is on Gandak. This barrage, Triveni canal has a barrage. When you walk over this barrage, it is actually connecting India with Nepal. ठीक है? तो गंडक जो है ना वो ट्रांस बाउंड्री भी है एंड बाउंड्री फॉर्मिंग रिवर भी है, दोनों है. ठीक है? दुधान डैम केन बेतवा लिंक कैनाल की वजह से न्यूज में है और दुधान डैम की वजह से क्या होगा? ह्यूज बायोमास विल गेट सबमर्ज्ड. जो पन्ना बायोस्फीयर रीजन है ना वहां का जो टाइगर पार्क है वो सबमर्ज्ड हो जाएगा. और किसका कल्चरल लॉस होगा इसकी वजह से? गोंड ट्राइब का. ठीक है? यू कैन सी ऑन बोर्ड आई हैव shown केन बेतवा लिंक कैनाल. बोथ केन एंड बेतवा आर tributaries of river Yamuna. The water which is excess in Ken will flow towards Betwa and for the diversion of that very water Dudhan dam is needed. Hence the Dudhan dam is being built on Ken river. Moving to question number 3, Vishnu Priya is an ethnic group found in which of the following states? देखिए नाम सुन के क्या लग रहा है? वेस्ट बंगाल हो सकता है, उड़ीसा हो सकता है, आसाम हो सकता है. आंसर है मणिपुर. This is Vishnu Priya Kshatriya community which has come out of Meitei tribes in Manipur. Okay, these people practice Vaishnavism. They are very cultural people, traditional people, very good looking people and they are very good by heart. ठीक है? In fact most of the people from northeast are very good looking and good by heart. That's a fact. ठीक है? Let's move to question number 4. Greenwashing is the term related to which of the following sectors? Marketing and advertisement, environmental issue, इंश्योरेंस एंड बैंकिंग, एनर्जी एंड पावर. राइट आंसर इज मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट. जैसे आई वॉश किया जाता है ना कि दिखाने के लिए घड़ियाली आंसू, ठीक है, उसी तरह ग्रीन वॉश किया जाता है. दिखाने के लिए ऐसा एडवर्टाइजमेंट होता है. द एडवर्टाइजमेंट इज मेड इन सच ए वे और द प्रोडक्ट इज मार्केटेड इन सच ए वे दैट द कंपनी विच इज मैन्युफैक्चरिंग दैट इज डूइंग फॉर द वेल बीइंग ऑफ एनवायरमेंट. दैट इज ओनली टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ दैट वेरी प्रोडक्ट इन द मार्केट. गुडविल क्रिएट किया जाता है झूठ बोल के. ठीक है? तो मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट. ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5,
विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कंसिडर्ड एज इनविजिबल इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। ठीक है, देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में इनविजिबल्स में क्या क्या आता है, वो चीज जिसका पता लगाया नहीं जा सकता है, ठीक है, कि सर्विस या प्रोडक्ट के बदले में दिया गया है। ठीक है, तो आपका रेमिटेंस रिसीव्ड फ्रॉम ओवरसी इंडियंस, किसी प्रोडक्ट और सर्विस के बदले में तो नहीं मिला, आया है। ठीक है, एक्सपेंडिचर मेड बाय फॉरेनर्स, ये भी सही बात है, फॉरेनर्स जब आए इंडिया में एज ए टूरिस्ट तो उन्होंने कुछ एक्सपेंडिचर किया ना, खाए पिए घूमे उठे बैठे, तो गवर्नमेंट उसका हिसाब नहीं लगा सकती ना, सही हिसाब तो नहीं पता चलेगा, एक अंदाजा लगाया जा सकता है डॉलर कन्वर्शन से या फॉरेन एक्सचेंज कन्वर्शन से, कितने मनी कन्वर्ट हुए, कितने मनी आए। ठीक है, प्लस सेल ऑफ सॉफ्टवेयर भी इनविजिबल्स के अंदर आता है, सेल ऑफ सॉफ्टवेयर है तो ये सर्विस, पर इसका इनविजिबल में डाला गया है। सेलेक्ट द फॉलोइंग, ठीक है, यहां पे तो दोनों है। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लीस्ट वोलाटाइल ऑफ ऑल एक्सटर्नल कैपिटल फ्लो। देखिए लीस्ट वोलाटाइल का मतलब है कैपिटल फ्लो जो आया है आपके पास, ठीक है, जो पैसा आया है, ठीक है, वो तुरंत नहीं भाग जाए, ठीक है, वो ठहरे, आपको सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम दे। तो सबसे ज्यादा प्रेफर्ड कौन सा है, एफडीआई है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो लीस्ट वोलाटाइल है, इसके साथ टेक्नोलॉजी भी आता है, स्ट्रैटेजिक लीडरशिप भी आती है, मैनेजमेंट भी आती है, तो लीस्ट वोलाटाइल है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, इन तीनों के कंपैरिजन में एफडीआई जो फॉरेन से कैपिटल आता है लीस्ट वोलाटाइल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन गवर्नमेंट बजट। इनमें से कौन गवर्नमेंट बजट में इंक्लूड नहीं किया जाता है। एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है, जो एक्सपेंसेस कर रही है गवर्नमेंट एक साल में, उसका एस्टिमेट ही तो बनाती है बजट में, तो इंक्लूडेड है। वेज एंड मींस टू रेज द रेवेन्यू, जो डेफिसिट हुआ है उसके लिए तो हिसाब रखती है ना, कि जो आमदनी है उससे कहीं ज्यादा खर्चा है, तो इसके लिए जो डिफरेंस है उसको लिए पैसा कहां से आएगा। ठीक है, तो डिस इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू आ सकता है, ग्रांट्स के थ्रू आ सकता है, लोन्स के थ्रू आ सकता है, मार्केट बोरोइंग के थ्रू आ सकता है। कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट, सही बात है, कैपिटल रिसीट क्या हुआ, जितना चीज गवर्नमेंट बेच रही है ना, डिसइन्वेस्ट कर रही है, वो कैपिटल रिसीट है। ठीक है, रेवेन्यू रिसीट क्या है, ये रेकरिंग है, ये हर साल आएगा, को लोन के अगेंस्ट जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो वाला। ठीक है, नन ऑफ द एबव, देखिए इसमें से सब के सब शामिल हैं, तो इसमें नन ऑफ द एबव इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू प्रोजेक्ट टाइगर। देखिए इसका 50 साल पूरा हो गया 1 अप्रैल 1973 को, और मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने पूरा इसका प्रचार और प्रसार किया और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस भी किए। तो लॉन्च इन 1973 प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, द फर्स्ट टाइगर रिजर्व अंडर इट वाज बंडीपुर, गलत है, एक्चुअली प्रधानमंत्री जी यहीं पे गए थे, तो आपको लग सकता है कि ये है, नहीं, जिम कॉर्बेट है। जिम कॉर्बेट के से कौन सी नदी गुजरती है, रामगंगा, रामगंगा रिवर फ्लोज थ्रू इट। ठीक है, दिस प्रोजेक्ट हैज बीन हाईली सक्सेसफुल इन प्रिजर्विंग एंड बूस्टिंग द टाइगर पॉपुलेशन इन द कंट्री। सही बात है, जब प्रोजेक्ट टाइगर आई थी तो 1800 था हमारे पास टाइगर, अभी लगभग 3200 है, तो सक्सेसफुल तो है ही। ठीक है, और ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस वी हैड अराउंड 40,000 के लगभग टाइगर थी। इंडिया अकाउंट्स फॉर 3/4 ऑफ ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन, सही बात है, तो गलत सिर्फ आपका सेकंड है। ठीक है, तो सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन है, तो ओनली 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, हाइब्रिड प्रोसेस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, न्यूक्लियर वॉरफेयर, ग्रीन स्टील, पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। देखिए यह है ना हाइड्रोजन, हाइब्रिड का मतलब है हाइड्रोजन फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्रियल स्टील। क्या होता है इसमें, देखिए आपका जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है ना, वो लगभग ग्लोबली जो ग्रीन हाउस गैस एमिट होता है, इंडस्ट्रियल जो प्रोसेस है स्टील बनाने का, उसकी वजह से 5 to 7% एमिट होता है। क्यों एमिट होता है, बिकॉज वी आर यूजिंग कार्बन कोकिंग कोल फॉर स्टील मैन्युफैक्चरिंग टू किक आउट द ऑक्सीजन ऑफ आयरन। आयरन में ऑक्सीजन रहेगा तो रस्टिंग हो जाएगी ना, तो आयरन को किक आउट करना है, तो कोल के साथ ऑक्सीजन
कंबाइन करता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन को किक आउट करना है आयरन से, तो हाइड्रोजन के थ्रू भी हो सकता है ना, पर उस प्रोसेस में अभी काम चल रहा है। तो जो प्रोसेस जर्मनी लेके आई है उसका नाम है हाइब्रिड प्रोसेस। तो इससे क्या बनेगा, ग्रीन स्टील बनेगा। एंड आई हैव टोल्ड यू ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन स्टील, ग्रीन वॉशिंग, दीज आर हॉट केक्स, एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू मोहिनी अट्टम। इट इज डोमिनेटेड बाय लास्या एस्पेक्ट। देखिए इंडियन डांस फॉर्म में दो ही एस्पेक्ट हैं, एक लास्य है जिसमें श्रृंगार है, जिसमें प्यार है, मधुरता है, ठीक है। दूसरा है तांडव जिसमें एग्रेशन है, गुस्सा है, ठीक है। तो मोहिनी अट्टम में ये है। मोस्टली परफॉर्म्ड इन ग्रुप, गलत। इट इज ए फोक डांस ऑफ केरला, ये भी गलत, क्लासिकल डांस में आता है, फोक डांस में नहीं है। इट डज नॉट इनकलकेट एनी एस्पेक्ट ऑफ भरतनाट्यम, ये भी गलत है, भरतनाट्यम से थोड़ा सा एस्पेक्ट लेता है, ठीक है। तो इनकरेक्ट में क्या है आपका 2, 3 एंड 4, ठीक है। जो मोहिनी अट्टम को फेमस की ना, सी इज ए गुजराती वुमेन एंड सी लर्नड इट एंड सी डाइड हियर, ठीक है। हर नेम इज कनक रेले, कनक रेले, ठीक है। उन्होंने नाट्य शास्त्र और जो केरला के जो नायर किंग हैं उनकी एक बुक है मोहिनी अट्टम के ऊपर, उन दोनों को मिला करके वापस से इसे री इन्वेंट किया, वापस से इसके ओरिजिनल फॉर्म को लाया कनक रेले ने, एंड सी डाइड दिस ईयर। दैट्स द रीजन आई एम एक्सपेक्टिंग ए पॉसिबल क्वेश्चन ऑन मोहिनी अट्टम, ओके। इसमें क्या होता है ना, विमेन बेसिकली व्हाइट साड़ी पहनती है जो गोल्डन एम्ब्रॉयडरीज के थ्रू होता है, गोल्डन ज्वेलरीज भी होते हैं, ठीक है। और ये पूरा लास्ट से एस्पेक्ट के ऊपर है, ठीक है। तो विद दिस वी कंक्लूड आवर discussion on possible question which may come in your EPFO examination plus UPSC prelims examination as well. Do download our app, comment at YouTube, like us, subscribe us. हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।